عزت کی گئی, آپ کو کھانا کھلایا گیا, کیوں آپ ان کے مہمان تھے. اب ان پر میزبان پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کا خیال کیسے رکھا جائے, لیکن وہ وحدہ لا شریک, وہ رب کی ذات طیبہ کریمانہ, اس نے اپنا جب مہمان بنایا اپنے محبوب کے امتی میں سے, تو وہ رب اپنے مہمانوں کو کتنا سرفراز کرے گا, کتنا عطا فرمائے گا. اس کا کیا کہنا کہ 5 دن اللہ حاجیوں کو دے رہا ہے, آؤ گنہگار ہو نا, لیکن تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے, تمہارے گناہ کم ہے, اس کی رحمت بہت وسیع ہے, آؤ تو میرے قریب آؤ. 5 دن جو حج کرنے گئے ہیں, جنہوں نے کیا ہے وہ یاد کریں, جو نہیں گئے ہیں دعا مانگے اللہ اس محفل کی برکت سے انہیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. 5 دن رب کی رحمت جوش میں رہتی ہے کہ آؤ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو. کتنے بڑے گنہگار ہو تم, اللہ تمہیں بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. لیکن میرے پیاروں, غور کرنے والی بات ہے یہاں پر, آپ ذرا غور کرو. یہ 5 دن آپ اللہ کے مہمان بن کر کے مینا میں قیام کرتے ہیں, مزدلفہ میں جاتے ہیں, عرفات میں جاتے ہیں, رات و دن مینا میں گزارتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ نے آپ کو, آج تو بہت سارے مسائل ہیں, ذرائع ہیں, بہت سارے سسٹم ہیں, ہر چیز مہیا ہے, لیکن یہ 5 دن اللہ اپنے مہمانوں کو تمہارے اپنے انداز میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم بمبئی میں کیسے رہتے تھے, کیا کپڑا پہنتے تھے, کیا کرتے تھے. نہیں, یہ 5 دن مہمان میرے بن کے رہو گے, عبادت تو میری کرو گے 5 دن. حاجی کا سونا بھی عبادت, حاجی کا چلنا بھی عبادت, حاجی کا کھانا کھانا بھی عبادت, حاجی کا ذکر کرنا بھی عبادت, مینا اور عرفات کے میدان میں لیٹنا بھی عبادت, مزدلفہ میں کنکر کو بننا بھی عبادت, مزدلفہ میں ٹھہر کے لیٹ جانا بھی عبادت. لیکن میرے پیاروں, رب کیا فرما رہا ہے, یہ 5 دن عبادت تو میری کرو گے, لیکن ادا مصطفیٰ کی اپناؤ گے, ادا مصطفیٰ کی اپناؤ گے. تم اپنے انداز میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے ہو جس انداز میں مصطفیٰ کریم اس مینا میں لیٹے تھے. تم بھی لیٹ جاؤ, اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. مصطفیٰ جس کپڑے میں آئے تو اسی کپڑے میں تمہیں بھی آنا ہے, جس طرح کی نالین پہنی تھی ایسی نالین تمہیں بھی پہننا ہے. مصطفیٰ جہاں نماز کو چھوڑ دیے تھے, قیامت تک کوئی حاجی عرفات کے میدان میں مغرب کی اذان سن کے بھی نماز نہیں قائم کر سکتا ہے, اسے مزدلفہ جانا ہے. اب مزدلفہ جب پہنچتا ہے حاجی تو عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. اب آپ یہ بتاؤ, اگر آپ کے علاقے میں عشاء کی اذان ہو جائے, اب کوئی مغرب پڑھے گا تو ادا ہوگی کہ قضا ہوگی؟ پوری دنیا میں قضا مانی جائے گی, ادا نہیں ہو سکتی ہے, نہ اسے ادا کا ثواب ملے گا, قضا ہی رہ جائے گی. لیکن قربان جاؤ, مصطفیٰ جان رحمت کی شان پر میرے آقا نے عرفات کے میدان میں مغرب کی اذان کو سن کر کے نماز نہیں پڑھی, مزدلفہ میں جا کر کے عشاء کی اذان ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کو ساتھ میں پڑھا. رب کہتا ہے محبوب, اگر تیری مرضی یہ ہے کہ عرفات میں مغرب نہیں پڑھنا ہے, عشاء میں تجھے پڑھنا ہے, جا, تیری اس مرضی میں میں بھی راضی ہوں. تبھی تو میرا امام کہتا ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب مغرب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ, سبحان میں کہتا ہوں یہ حج حقیقت میں عرس مصطفیٰ ہے. یہ حضور کا عرس منایا جا رہا ہے, حضور کی یادوں کو تازہ کیا جا رہا ہے, حضور کی یادوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. لاکھوں کو حضور اللہ بلا کر کے بتا رہا ہے, دیکھو تم یہ کہتے ہو پرانی باتیں مت کرو, یہاں پر آؤ تو اپنے نئے انداز میں نہیں, وہی 1448 سال پہلے جیسے آمنہ کے لال آئے تھے اسی انداز میں تم کو آنا ہے. جیسے وہ لیٹے تھے ایسے ہی تمہیں لیٹنا ہے,
जैसे उन्होंने सफर किया तुम्हें ऐसे ही सफर करना है, जैसे उन्होंने कंकर को चुना ऐसे ही तुम्हें भी चुनना है, जैसे उन्होंने शैतान को कंकर मारा ऐसे तुम्हें भी मारना है। अब बताओ, अभी सईद भाई ने काबा भी नहीं देखा, बस आखिरी बात खत्म। अभी मक्का गए नहीं गए ना, अभी मदीना शरीफ गए नहीं, हज की अभी ये ना मक्का गए, ना मदीना शरीफ गए, ना अरफात गए, ना मीना गए, ना मुजदलिफा गए, ना जमरात पर कंकर, कुछ नहीं किया। देखिए खाना खिलाया ना इन्होंने, बस हमारे उलमा इल्मा के तवज्जो चाहिए, खाना खिलाया इन्होंने। अब आप इनसे पूछो सईद भाई खाना काहे का खिलाया आपने, तो काहे का खिलाया कि हज करने जा रहे हैं, अभी किया नहीं है। आप समझे कुछ, अभी किया नहीं है। वलीमा कब होता, पहले हो जाता है, निकाह से पहले नहीं, बाद में। यहाँ के अभी देखा कुछ नहीं, अभी फ्लाइट में भी नहीं बैठे हैं, पता नहीं पासपोर्ट टूर वाले ने दिया कि नहीं दिया, लेकिन कंफर्म हो गया 20 को हमको जाना है। तो जाने से पहले क्या किया, खाना खिलाया। अब इनसे कोई पूछे, आपको पूछो गाँव वाले, भैया तो खाना काहे खिलाया, तो कहिए कि हज करे गए थे, हमें ऐसी उम्मीद नहीं रही कभी अल्लाह हमें बुलाई है, हमारे ऐसा गुनहगार आदमी का अल्लाह बुलाई नहीं, एक लिए हम खाना वाना खिलाए के जाए चाहिए थे, ताकि पूरे समाज वाले इलाके वाले मिल मिलाए थे, गलती होती हो माफी तराफी हो जाए, लोग खाना खाएंगे। तो खुशी क्या है, हज करने जाना है, काबे को देखना और खाना खिला, अभी देखा नहीं है इमाम साहब, और खिला दिया इस यकीन से कि मुझे काबा देखना है, हज करने जाना है, मायून के एतबार से इन्होंने खिलाया खाना होना। समझ के मेरी बात, ये खाना खाने में खिलाने में कोई सवाल इनसे पूछेगा, ये बिदअत करो तो ये गलत काम है, कहाँ कि नहीं, इतनी बड़ी बारगाह जा रहे, शुक्राने के तौर पर खिला रहे हैं। मेरे प्यारो, यही तो हम भी कहते हैं, यही हम भी कहते हैं कि जब हमारे घर से जनाजा निकलता है, तीजे का जो खाना हम खिलाते हैं वजह इतनी है, बस अगर समझ जाओ तो कयामत तक करते रहोगे। अभी काबा देखा नहीं, खिला दिया। यहाँ हम इसलिए खिलाते हैं कि मेरे बाप दादा अम्मा अब्बा ईमान की हालत में काबा नहीं, काबे के काबे को देखा है कब्र में जाकर। बेशक सुभान तो अल्लाह। जब काबा देखने जाते हैं तो भी खिलाते हैं, और जब काबे के काबे को देखने जाते हैं तो भी खिलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ तो काबा देखने जा रहे हैं और वहां पर काबे के काबे को देखने जा रहे हैं। समझे मेरी बात को, इसलिए खिला दिया कि जिस हसरत में माँ बाप ने उम्र बिताई, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशो दुहा करते, हर हमेशा ये आस रही या अल्लाह हुजूर को दिखा दे। अब माँ बाप ईमान के साथ गए, इस बात का यकीन है कि हुजूर कब्र में आएंगे। अम्मा अब्बा ने देखा है, तो जैसे काबा देखने से पहले खिलाया, अब तो काबे का काबा देखने गए। आप समझे, अब तो काबे का काबा देखने गए हैं। अब जो ना खिलाए तो हजे नहीं की सकता, खिलाइए। जो हज करने जाएगा वही तो खिलाएगा, और जो काबे के काबा देखेगा, तो बहुत बड़ी सादत की बात है। और पूरा हज, ये तो वक्त इतना है तो, लेकिन जैसा अपने को माहौल चाहिए ना मजमे वाला, वो नहीं है। तो पूरा हज 5 दिन का अल्लाह हम सबको फिर से जाने की तौफीक अता फरमाए। ये 5 दिन का पूरा हज, ये हुजूर का उर्स है। हमने जो एनालाइज किया, ये क्या हुजूर का उर्स है। जहां हुजूर बैठे दुआ मांगे, वहीं तुमको भी दुआ मांगे। जहां हुजूर लेट गए, वहां तुमको भी लेट जाना है। अब बताओ, है आरसीसी पिलर, क्या है? मीना में कहा है आरसीसी पिलर, और कंकर का मारे शैतान को मार। अरे हाथी साहब इतना झूठ बोला था, मारे हो आरसीसी पिलर का, और कहा तो हाँ शैतान को मारा। लेकिन अगर कोई हाजी कह दे कि मैंने पिलर को मारा, उसका हज नहीं होगा। है पत्थर, लेकिन मार के क्या कहना है? शैतान को बोलो भाई, शैतान को। शैतान को
हमें हज यही तो निस्बत तो समझा रहा है। बेशक एक लम्हे के लिए शैतान खड़ा हुआ, सऊदी हुकूमत ने उसे कंक्रीट का लोहे का आलीशान पिलर बनाया, उसके ऊपर मार्बल और टाइल्स भी लगा दी, लेकिन पत्थर कंकड़ मारने वाला क्या कहेगा? शैतान को। एक लम्हे के लिए शैतान खड़ा हो तो कयामत तक के लिए वो शैतान, जबकि दिख नहीं रहा है आरसीसी पिलर। अरे प्यारो, यही निस्बत तो हम बरेलवी तुम्हें समझाते हैं, यही निस्बत तो हम बताते हैं। वो एक लम्हे के लिए खड़ा हुआ, एक लम्हे के लिए, अभी है भी नहीं। रिवायतों में है कि हज के अय्याम में फिर उसको लाया जाता है, फिर अभी है नहीं, लेकिन बोलना है शैतान है, ये शैतान है, मुबारक करना भी है, ये शैतान है। मेरे प्यारों, जो 800 साल से गरीब नवाज लेटे हैं, उनके पत्थर को तुम पत्थर कहते हो, और जहां शैतान एक लम्हा खड़ा रहा उसको पत्थर नहीं कहते, उसको तो शैतान है। अरे कुछ तो अकल लो। शैतान की निस्बत समझ गए, और अल्लाह वालों की निस्बत तुम्हें समझ में नहीं आ रही। पूरा हज निस्बत को समझाता है। इसको समझाता है निस्बत को। ये तुम्हारा हाथ है, चूमो। ऐसे तुमने चुमा ही समझाने के लिए, ये चुमना नहीं चूम सकते अपना हाथ को। लेकिन जैसे आप मताफ में जाओगे तवाफ करने के लिए, हजर अस्वद के सामने हाथ किया, और हाथ चूमो, वाजिब है चूमो। बाबू कहा कि हजर अस्वद चूमे, अरे हथुआ तोरा है, कहा तो हजर अस्वद। हाँ हजरत इस्तेहलाम किए हैं, एक लम्हे के लिए तुम इस्तेहलाम कर दो और ये हाथ तुम्हारा गुनहगार हाथ हजर अस्वद बन जाता है। बेशक समझे? हाथ तुम्हारा है, चूम रहे, काहे को चूमा? हजर अस्वद है। एक लम्हे के लिए तुम्हारा गुनहगार हाथ हजर अस्वद बन जाता है, तो जहां सदियों से मखदूम पाक आराम कर रहे हैं, बेशक सुभान अल्लाह, सदियों से हाजी अली आराम कर रहे हो, मखदूम माहिमी आराम कर रहे हो, जब तुम्हारे जैसा गुनहगार हाल एक लम्हे के लिए हजर अस्वद बन सकता है, बेशक सुभान अल्लाह, तो जहां हाजी अली आराम कर रहे हैं, अब वो महज हाजी अली की बारगाह नहीं, बल्कि मौलाए कायनात की मज़ार की आरामगाह बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, और खुदा की तजल्लियात का नुज़ूल उस जगह पर हुआ करता है। बेशक मेरे प्यारों पे इश्क़ मुस्तफ़ा जो पढ़ते हैं बुखारी, बुखार आता है उन्हें बुखारी नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सईद भाई को हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, इनके हज को आसान फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इनके हज की बरकतों से इनके तमाम गलती गुनाहों को माफ़ फरमाए, खताओं को माफ़ फरमाए, आमीन। और इनकी नस्लों में अल्लाह सबको हाजी बनाए, और आमीन। हम सबको अल्लाह इतना रिज़्क़ अता फरमाए कि हम सबको अल्लाह बैतुल्लाह की तवाफ की तौफीक अता फरमाए। और प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहिब माल हुआ जिस पर ज़कात देना फ़र्ज है, साहिब माल शरीयत के मुताबिक हो गया और फिर भी वो हज ना किया और उसी हालत में मर गया, तो हुजूर फरमाते वो यहूदी हो के मरेगा। क्या हो के मरेगा? यहूदी की मौत मरेगा। तो मेरे प्यारो, हज अगर फ़र्ज है तो हर चीज़ छोड़ करके सबसे पहले अपने फ़र्ज की अदायगी करो। ये मत सोचो कि अभी तो खरा नहीं, अभी ये कर ले, वो कर ले। अरे रब बड़ा करीम है, वो तो यतीमों को जब सहारा देता है, विवाहों को जब सहारा देता है, उस पर सब छोड़ दो, उसका काम उस पर छोड़ दो, अपना काम अपने फर्ज को अदा करते रहो। अल्लाह सारे रास्ते को हमवार फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बरकतें अता फरमाए। मेरे बोलने सुनने सुनाने में समझने समझाने में कोई गलती खता हो अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इनके जिंदाबाद।